Meenakshi, switch on your video. Yes, we will just wait for a minute for others to join and then we will start. Okay, so let's get started. It's time. Okay. So, what were we discussing till now was the junction diode. What type of junction is it? It's a PN junction, which means that the diode is made up of a P-type conductor, semiconductor, and a N-type semiconductor, and there is a depletion layer created in between. The physics of that we have already studied, right? Now there are two ways to connect it. Okay, so from a symbol perspective, we show the diode junction diode like this. Okay, in this, the head of the arrow, right, where this part, the head of the arrow is the N type semiconductor, and this one is the P type semiconductor. Okay, now when we join it, there, yes, yes, what do you want to say? Okay, so there are two ways to connect it. One is that we connect the positive side of the battery's terminal to the P-type semiconductor, and the negative to the N-type semiconductor. This kind of connection is called forward bias. Similarly, a reverse connection where we connect the negative terminal to the P-type semiconductor is known as the reverse bias. Okay, so all this we have already studied. So we have a P-type and the N-type, or both are joined through a metallurgical joint, and they are connected to the battery. We can see the difference here is that they are connected in the opposite direction. Okay, now let's first understand what happens when we connect them in a forward bias or P type to the positive terminal. See this symbol, look at this symbol here. Okay, everybody knows that this is a battery where the bigger line is the positive terminal of a DC battery and the small line is the negative terminal. This everybody knows. But when we put an arrow on it, it means it's a variable voltage supply. Means we can turn a knob and change the voltage this battery provides. ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो है ये वेरिएबल वोल्टेज है, और ये कनेक्शंस कैसे बने, ये सर्किट बनाना हमें आना चाहिए कि positive side of the variable voltage we have connected to P type and the negative side we have connected to the N type. Somewhere in the circuit, it doesn't matter we put the switch on this side or that side. It's but if we put the switch anywhere, we have to put a switch, and somewhere in the series we also have to put the ammeter. Okay, is an ammeter. The word they have used is a milliammeter, means the sensitivity of this ammeter should be to measure current which is in the order of
milliamperes. Means it should be a fairly sensitive ammeter. Now across the diode we put a voltmeter. ठीक है ना? तो वोल्टमीटर जो है वो डायोड से पैरेलल में लगाना है हमको, और एमीटर जो है वो सीरीज में लगाना है। अब क्या हो रहा है कि जो वोल्टमीटर है वो वोल्टेज मेजर कर रहा है अक्रॉस द डायोड, ओके, while the ammeter is measuring the current going into the circuit. ओके, ये सब आपको याद होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस से कि वोल्टमीटर जो होता है वो बहुत ही कम करंट लेता है, इसलिए जो करंट यहाँ इस सर्किट में जा रहा है, राइट, हम उसी को मान सकते हैं कि वही करंट है जो डायोड में से भी जा रहा है। ओके, सो इसलिए जो है हम इसको जो है यहाँ पे लगाते हैं और हम उसको दोनों करंट को सेम मान लेते हैं क्योंकि वोल्टमीटर को हम ओपन सर्किट मानते हैं। ठीक है, इन प्रैक्टिकलिटी इट डज टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विच इन इन स्मॉल न्यूमेरिकल्स until unless it is given हम इसको ओपन सर्किट मानते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने अपना सर्किट बना लिया है और अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल जीरो वोल्टेज से धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ानी शुरू करेंगे। तो हम क्या पाएंगे कि शुरू में हम जब ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं जी जीरो से, तो जो है कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, शुरू शुरू में करंट क्यों नहीं फ्लो होता है एक बार वो समझ लेते हैं कि ये हमारा डायोड है। ठीक है ना, तो बीच में ये क्या होता है, यहाँ पे एक हमने देखा था एक बैरियर पोटेंशियल होता है बीच में डिप्लीशन लेयर में। तो शुरू शुरू में जो ये हमने इसमें वोल्टेज लगाई है जो इसको अपोज कर रही है बैरियर पोटेंशियल को, ये पहले इसको ओवरकम नहीं कर पाती है, धीरे धीरे ये उसको ओवरकम करने की कोशिश करती है, इसलिए शुरू शुरू में करंट फ्लो नहीं होता है। फिर around 0.6, okay, it depends on the amount of doping, it depends on the material it is made up of, multiple things, but roughly around a silicon semiconductor diode around 0.6 volt. Okay, हमें बस ये ऑर्डर याद रखना है, 0.6 एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है कि 0.6 के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करंट बढ़ता है ऐसे, और फिर थोड़ी सी और हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं, उसके बाद सडनली जो है बहुत सारा करंट फ्लो करने लगता है। ओके, सडनली अ लॉट ऑफ करंट स्टार्ट्स टू फ्लो एंड आफ्टर दैट even if we try to increase the voltage here, the current through this has gone to a very high number and actually the diode will burn. So we can't keep increasing the voltage even in the forward bias to whatever level we want. The current will dramatically increase. ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस वोल्टेज पर आकर क्या हो रहा है, इस वोल्टेज पर आकर क्या हो रहा है कि ये करंट इनफाइनाइटली इंक्रीज हो सकता है, राइट, इसका मतलब ये है कि दिस इज वर्किंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट, और इन अदर वर्ड्स दिस इज वर्किंग लाइक अ प्योर कंडक्टर। ठीक है, तो एक वोल्टेज के अबव ये एक प्योर कंडक्टर की तरह काम करता है उस वोल्टेज से नीचे। ठीक है, और ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है इसके नीचे, इस वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, इसके नीचे इट डज नॉट बिहेव लाइक अ कंडक्टर, इट इज अ ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जब हमने फॉरवर्ड बायस में इसको कनेक्ट किया है डायोड को, और ये जो वैल्यू ऑफ द करंट हम मेजर करेंगे ये हम पाएंगे कि ये मिली एम्पियर रेंज में है। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम सर्किट है,
हमने केवल क्या किया कि ये जो था हमारा बैटरी, इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, जहां यहाँ पॉजिटिव था वहां नेगेटिव लगा दिया, जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव लगा दिया, और अब वापस से हमने वोल्टेज बढ़ाने धीरे धीरे शुरू। तो हम क्या पाते हैं कि जब हम वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते हैं यहाँ पर, कि बहुत कम करंट बहना शुरू हो जाता है सर्किट में, और वो काफी वोल्टेज बढ़ाने तक भी, ठीक है, काफी वोल्टेज बढ़ाने तक भी उतना ही रहता है। ओके, सो विच इज दिस करंट, विच इज द रिवर्स बायस करंट, जो लगभग कांस्टेंट रहता है चाहे हम वोल्टेज बढ़ाते रहें। लेकिन एक वोल्टेज आती है जो काफी हाई वोल्टेज होती है, लेट्स से 80 वोल्ट्स, 90 वोल्ट्स, राइट, विच इज इन अ डिजिटल सर्किट इजीली नहीं होती हैं वो वोल्टेजेस। लेकिन अगर उस हम वोल्टेज पे आते हैं तो सडनली क्या होता है, बहुत सारा करंट फ्लो करने लगता है। ये देखिए, ये अचानक से इसकी जो रेजिस्टेंस है लगभग 0 हो जाती है, लेकिन इस समय इतनी हीट जनरेट होगी कि हमारा डायोड जो है इट विल burn. Okay, our diode will start to burn and it will become useless. Okay, तो इसीलिए क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो जाता है इस वोल्टेज पे, ये वाली जो वोल्टेज है, ओके, इज द VBR, द ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये जहां पे करंट बहना शुरू हुआ, दिस इज कॉल्ड द V थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम केवल इसको ग्राफ में देख रहे हैं। अब इस ग्राफ को समझने में कुछ चीजों पे आपको और भी ध्यान देना है। क्या है कि ये ग्राफ एक थोड़ा सा नॉर्मल ग्राफ से अलग है, क्योंकि इसमें जो स्केल है वो वेरिएबल स्केल है। ठीक है, तो देखिए कि कैसे ये अलग है स्केल, कि जो प्लस वाई एक्सिस है, ठीक है ना, ये वाला जो प्लस वाई एक्सिस है ये मिली एम्पियर्स में है। बर्थडे मम्मी, फिर तुम लोग क्या तू ही बोला जब से कर रहे कल निखिल, कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। ओके, एंड जो नेगेटिव वाई एक्सिस है, यानी कि जो करंट रिवर्स बायस में फ्लो करेगा, वो कैसा है, ये माइक्रो एम्पियर में है, यानी इससे 1000 गुना कम। ठीक है ना, तो देखने में हमें क्या लग रहा है, ये ऑलमोस्ट ऐसे एक अगर हम इस कर्व को देखते हैं तो ये हमें ऐसे एक सिमेट्रिकल कर्व जैसा लग रहा है, राइट, जैसे एक्स क्यूब का जैसे ग्राफ आपने मैथ्स में कभी बनाया होगा उसके जैसा लग रहा है, लेकिन ये वैसा है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात, पॉजिटिव करंट एक्सिस is 1000 times bigger than the negative current axis. ठीक है, ये मिली एम्पियर में है और ये माइक्रो एम्पियर में है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये कैलिब्रेशन क्या है, ये 0.2 है, 0.2 वोल्ट इन द फॉरवर्ड बायस। इन द रिवर्स बायस उतना ही डिस्टेंस पे इसने बनाया है 20। इसका क्या मतलब है कि ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड जो है, इसमें ये वाली साइड on the negative side is 100 times bigger than the positive side. ठीक है, तो ये इतना अनयूजुअल सा ग्राफ क्यों बनाया होता है? ये अनयूजुअल ग्राफ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर हम इसको एक ही स्केल पे बनाना चाहें तो क्या होगा, अगर हम इस साइड का बनाएंगे तो ये बिल्कुल हमें ये जो दिखाना चाहते हैं कि हम ये थोड़ा सा करंट फ्लो होता है रिवर्स बायस में, वो हम नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, रिवर्स बायस में हम ये छोटा सा करंट नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट जीरो जैसा दिखाई देगा। और अगर हम इसके स्केल से बनाएंगे तो हमारे पेज में पॉजिटिव वाला स्केल फिट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ है जिसमें कि पॉजिटिव वाई एक्सिस हैज अ डिफरेंट scale than the negative y-axis and the positive x-axis has a different scale than the negative x-axis. ठीक है, तो इस ग्राफ को पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़ना है आप। ओके, सो
These are called the VI, voltage current characteristics of the diode junction. Okay, now having understood this, let's see that what can be the uses of the diode. Okay, so one of the most common use of a common junction diode is to use it as a rectifier. ओके, रेक्टिफायर का क्या मतलब है? जो किसी चीज को, वैसे इंग्लिश में हम रेक्टिफाई करना बोलते हैं, किसी चीज को ठीक कर दे, राइट? लेकिन यहाँ पे रेक्टिफायर का मतलब होता है कि जो चीज ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर दे. ओके, सो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस दैट converts AC current into DC current. तो हम एक जंक्शन डायोड को AC करंट और उससे DC करंट बनाने में किस तरह यूज करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. बिफोर दैट लेट मी टेक अ क्विक पोल. बेटा तुलसी और यश को छोड़कर सारे वीडियोस ऑफ हैं. कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस? गुड सोनाली. बाकी लोग निखिल, कंचन, जय, गोपाल, मीनाक्षी, संदीप, बेटा करिए ऑन, अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज. या गोपाल, जय, संदीप वीडियो ऑन कर लीजिए. जय, okay, yeah, keep your videos on. Okay, Gopal, usually your video is on. आज क्या हुआ? You are the only one जिसका वीडियो ऑन नहीं है. Switch on your video. Okay, quickly do that. I'll continue in the meantime, but you quickly switch on your video. Okay, so रेक्टिफायर क्या चीज है? जो कि एक एसी करंट को या एसी वोल्टेज को डीसी करंट या डीसी वोल्टेज में बदलती है, यानी ऑल्टरनेटिंग टाइप ऑफ सर्किट्स को डीसी टाइप ऑफ सर्किट्स में बदलती है. ठीक है, तो हम डायोड को किस तरह यूज करेंगे? इसमें हम दो तरह के रेक्टिफायर पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर. ओके, और इसको क्यों हाफ वेव कहते हैं वो थोड़ी देर बाद समझते हैं. तो इसका पहले कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं. कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये हमारी एसी सोर्स है. ठीक है, एसी सोर्स को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी सर्किट में कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो अब यहाँ पे एसी करंट फ्लो कर रहा है इस वाले सर्किट. ये क्या इंड्यूस करेगा? इट विल इंड्यूस एन एसी करंट इन द सेकेंडरी सर्किट. ओके, अब ये सेकेंडरी सर्किट में हमें जिस भी स्टेप अप स्टेप डाउन जो भी करना है, उसके बाद वी विल हैव द रिक्वायर्ड वोल्टेज इन द सेकेंडरी सर्किट. अब इस सेकेंडरी सर्किट में हम क्या करते हैं? हम बस एक डायोड लगा देते हैं. ठीक है, एक डायोड लगा दिया और एक रेजिस्टेंस लगा दी जिसको हम कह सकते हैं लोड रेजिस्टेंस. ओके, यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी, ओके, दिस इज द वोल्टेज वी आर इंटरेस्टेड इन. Okay, and what type of voltage do we want this to be? We want this to be a DC voltage. And the current flowing through RL, we want it to be a DC current. Now, this is such a simple circuit. What have we done? We have just put a junction diode. Now, how would it convert the
AC current into the DC current. Let's try to understand. Okay, so we have drawn the wave front of the normal AC current, which is a sinusoidal wave. Okay, now in this, let's see, when this side, A side, is positive, then the B side is negative. When the A side is positive, the positive side is connected to the P and the negative side is connected to the N. So what type of biasing is this? Anybody can answer that question for me? इस समय जब पॉजिटिव टर्म वोल्टेज P पे कनेक्टेड है और नेगेटिव वोल्टेज N पे कनेक्टेड है, तो ये किस तरह की बायसिंग हुई? No one can answer that. This रिपीट कर। देखिए, ये हमारा इस समय सर्किट को देखते हैं जब हम इस वाले पार्ट में हैं, ठीक है। इस समय हमने डायोड का ये वाला पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और ये वाला नेगेटिव से कनेक्ट हुआ है। तो ये कौन सी बायस हुआ है डायोड, फॉरवर्ड या रिवर्स? ये P साइड होती है हमेशा, ये N साइड होती है। तो P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, N नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये कौन सी बायसिंग हुई? P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से होती है हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। तो इस वाले लूप वाले पार्ट में, ठीक है, जब हम यहाँ पे पॉजिटिव लगा रहे हैं, ये पूरे के पूरा क्या है, फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। अब बताइए फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड बायस का मोटे तौर पे क्या मतलब होता है? ऑब्वियसली ये जो हम कर रहे हैं ये थोड़ा मोटे तौर पे हम देख रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनाने की हमें अभी जरूरत है, क्योंकि हमारे एग्जाम में वो एक्यूरेसी अभी हमें नहीं चाहिए जो बड़े सर्किट डिजाइन्स में यूज होती है। तो हम मोटे तौर पे देख रहे हैं कि जब फॉरवर्ड बायस किया तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि पूरा करंट पास होगा इसमें, ठीक है। ये एक शॉर्ट सर्किट है जब फॉरवर्ड बायस है, तो करंट आराम से पास हो रहा है। तो करंट आराम से पास होगा तो करंट हाई होगा, तो सारी की सारी वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगी? RL के अक्रॉस होगी, क्योंकि वही मेन रेजिस्टेंस है इस सर्किट। तो अब करंट इज वेरी हाई एंड द वोल्टेज ड्रॉप around RL is IRL, okay, so which is a high voltage. So जैसे जैसे वोल्टेज ज्यादा होगी उतना ही RL के अक्रॉस भी वोल्टेज ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यह है कि इस पोर्शन में ये फॉरवर्ड बायस्ड है, यानी कि RL हैज वोल्टेज वेरी सिमिलर टू द इनपुट वोल्टेज। सो ये हमारा क्या बन गया, आउटपुट बन गया अक्रॉस RL, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। अब क्या होता है, क्योंकि ये तो AC है, तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि ये वाला टर्मिनल जो है इसका, ये वाला टर्मिनल, मैं इसको दूसरे कलर में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद, ठीक है, हम इस वाले वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इस वेव पार्ट पे पहुंचे तो क्या हो गया कि ये वाली पार्ट तो पॉजिटिव हो गई और ये वाली पार्ट नेगेटिव हो गई। अब अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब हमारा सर्किट क्या बन गया, हमारा सर्किट ये बन गया, ये P ही रहेगा, ये N रहेगा, लेकिन P से क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव, और N से क्या कनेक्टेड है, पॉजिटिव। इस पार्ट में दिस इज हाउ द सर्किट लुक्स लाइक। तो ये कौन सी बायसिंग हुई? अगर ये फॉरवर्ड थी तो इट्स वेरी इजी टू से कि ये रिवर्स बायसिंग है, राइट, क्योंकि जब P नेगेटिव से कनेक्टेड होता है बैटरी के तो रिवर्स बायस होता है। अब रिवर्स बायस को मोटे तौर पे क्या बोलेंगे? ठीक है कि उसमें भी एक छोटा सा करंट फ्लो होता है, लेकिन वो कितना छोटा करंट है, वो है माइक्रो एम्पियर्स में, जो प्रैक्टिकल पर्पसेस में बहुत ज्यादा प्रिसीजन अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट्स ना हो तो मेजर भी नहीं कर सकते।
तो ये हमें लगेगा एज इफ दिस इज अ ओपन सर्किट, यानी कि इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। अगर कोई करंट नहीं फ्लो होगा आरएल के थ्रू, तो आरएल के थ्रू क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा? आईआर होता है पोटेंशियल ड्रॉप, और करंट है 0, सो आईआर इज ऑल्सो इक्वल टू 0, यानी कि ये जो वोल्टेज है क्रॉस एक्स वाई, ये क्या हो गई? 0 हो गई, और इसीलिए ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये इस दौरान 0 रही। ठीक है, उसके बाद जो है हम वापस से किस में आ गए? इस वाले पार्ट में आ गए जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बायस हो गया। पॉजिटिव बायस हो गया तो नीचे जो है एज इट इज वही वोल्टेज नीचे हमें मिल गई। फिर हम जब इस पार्ट में आएंगे तो वापस से ये जो है नेगेटिव बायस हो जाएगा, और नेगेटिव बायस होगा तो कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। देखिए इनपुट में वोल्टेज पॉजिटिव भी जाती है और नेगेटिव भी जाती है, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव तो जाती है लेकिन नेगेटिव नहीं जाती। जहां नेगेटिव जाना था वहां पे वोल्टेज 0 रहती है। ठीक है, अब क्योंकि कभी भी वोल्टेज नेगेटिव नहीं जा रही है, जबकि ये देखिए कि वोल्टेज चेंज हो रही है, एक 0 वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू तक जाती है, वापस 0 पे आती है, तो ये एक परफेक्ट डीसी करंट तो नहीं है, ये एक परफेक्ट डीसी आउटपुट तो नहीं है, लेकिन फिर भी डीसी आउटपुट है क्योंकि कभी भी करंट और वोल्टेज दोनों ही कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं आउटपुट में। तो दिस इज डीसी, दो नॉट कांस्टेंट डीसी, बट इट इज डीसी नेवरदलेस। डीसी तो ये है ही। अब ये डीसी आउटपुट हमें मिल गया, लेकिन कितने पार्ट का मिलता है? अगर हम यहां पर जितना भी वेव हमारी आ रही है उसका आधा तो वेस्ट हो जाता है, आधा हमें आउटपुट नहीं मिलता है। क्योंकि इसमें हमें में आधे का आउटपुट नहीं मिलता है, हम इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? केवल आधा ही वेव हमें मिल रहा है तो हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या इसमें समझ आने वाली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा टॉपिक। हमें ये इनपुट आउटपुट बनाने आने चाहिए, हमें हाफ वेव का मीनिंग समझ आना चाहिए, रेक्टिफायर का मीनिंग समझ आना चाहिए, और इसमें डायोड क्या रोल प्ले कर रहा है वो समझ आना चाहिए। हमने जहां डायोड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ देखे इस तरह के थे, हमने इस सर्किट को बनाने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। हमने अपने डायोड, और क्योंकि कभी भी हम 80 वोल्ट तक तो जा ही नहीं रहे, ठीक है, तो हम वहां तक तो पहुंचेंगे नहीं इस पॉइंट तक, तो जो हमारा ग्राफ है हमने ऐसा ले लिया है, बस ये सीधा आया और ऊपर चला गया, यानी कि पॉजिटिव साइड में, और ये डिस्टेंस भी बहुत बहुत कम है। मान लीजिए हम 10 वोल्ट का करंट लगा रहे हैं तो ये तो 0.6 है, हम इग्नोर कर रहे हैं इसको भी, तो फिर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक हो गई वो इस तरह की हो गई। दूसरा कलर यूज करके दिखाता हूं, हमारी अप्रोक्सीमेटेड कैरेक्टरिस्टिक ये हो, यानी नेगेटिव वोल्टेज पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, और जैसे ही वोल्टेज पॉजिटिव की तो इट इज लाइक एन प्रॉपर क्लोज्ड सर्किट, जितना चाहो करंट फ्लो कर लो। ठीक है, ये थियोरिटिकल है, ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा तो डायोड जल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, आउटपुट प्योर डीसी नहीं होता है और आधे ही समय का हमें आउटपुट मिलता है। ऑब्वियसली वी डोंट लाइक इट अ लॉट, राइट? क्यों? क्योंकि भाई हम तो चाहते हैं कि हमें कंटिन्यूअस डीसी मिले। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये कि ये प्रॉपर डीसी है ही नहीं, और दूसरा ये कि आधे समय तो ये आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका यूज थोड़ा कम है।
हम चाहेंगे कि कम से कम ये वाला जो हमारा पार्ट है ये तो वेस्ट ना हो। वो हम किस तरह करते हैं? बाय मेकिंग अ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब फुल वेव रेक्टिफायर को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये काम करता है। देखिए, पहला पार्ट तो सिंपल है कि वो इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे ऑब्वियसली एक एसी करंट सोर्स लगाई गई है और ये ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे हमें आउटपुट आ गया। अब जो सबसे बड़ा हमने डिफरेंस किया, ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इसके एकदम सेंटर में हमने एक टैप किया और एक आउटपुट निकाल लिया। ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल के बिल्कुल सेंटर में हमने एक कनेक्शन बनाया है। ठीक है, तो इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं उनमें आप देखोगे कि इस साइड तो 2 ही टर्मिनल्स हैं, लेकिन इस साइड जो है 3 टर्मिनल होते हैं, बीच वाला न्यूट्रल होता है और ये टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 है। तो ये इस तरह का हमें ट्रांसफॉर्मर चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट में भी एक डायोड लगाते हैं और इस वाले पार्ट में भी एक डायोड लगाते हैं। ठीक है, देखिए दोनों डायोड एक ही डायरेक्शन में दिखाई देंगे हमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम ये सर्किट कंप्लीट कैसे करते हैं? हम ये नहीं हो रहा है हमारा सर्किट कंप्लीट। ठीक है, हम कैसे करते हैं? ये बीच में से जो हमने निकाला है तार, इस तार को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी बीच में से डायोड जहां पे मिलते हैं उस जगह से एक आउटपुट निकालते हैं और यहां से आउटपुट निकालते हैं और इनके बीच में हम क्या कर देते हैं, अपनी लोड लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्किट कैसे बना है ये आपको अच्छे से 2-4 बार हाथ से ड्रॉ करेंगे तभी समझ आएगा। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट एकदम पढ़ भी लोगे याद हो जाएगा, लेकिन ये अपने हाथ से 2-4 बार खुद बनाइए सर, तभी आपको याद होगा। ठीक है, अब क्या किया हमने, वैसे तो इतना करना हमारे लिए काफी हो सकता था, लेकिन हमको एक चीज और करनी है। वो क्या करनी है कि हमको ये जो N है इसको ग्राउंड करना है। ये जो सिंबल होता है किसी भी सर्किट में, ध्यान दीजिए ये ऐसे करके सर्किट में सिंबल होता है, इसका मतलब होता है ग्राउंडेड। ये ग्राउंड का सिंबल होता है, तो इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, जो यूनिवर्सल जीरो वोल्टेज मानते हैं जिसको। ठीक है, हम ये इसलिए करते हैं कि जबकि सर्किट हमारा काम करेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो सेंटर्ड हो, अराउंड जीरो हो, क्योंकि दैट इज हाउ वी एक्सपेक्ट ऑल्टरनेटिंग करंट टू बी। जो हमें नॉर्मली ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है, इट्स सेंटर्ड अराउंड जीरो। एक बार प्लस ए तक वोल्टेज जाती है, एक बार माइनस ए तक वोल्टेज जाती है। हम आउटपुट भी वैसा ही चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो सेंट्रल पॉइंट है इसको ग्राउंड भी कर देते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं, इसके अक्रॉस लोड लगाते हैं। ये सर्किट डिजाइन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये एक्चुअली काम किस तरह करता है। गिव मी 1 मिनट बिफोर आई स्टार्ट दैट। Okay, I'm just going to mark the attendance. So just a second. ओके, ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये काम किस तरह करता है। अब देखिए, हमने इनपुट दिया जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट है, एक साइनोसॉइडल वेव। ठीक है, ये वाले में हमने साइनोसॉइडल दिया। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव वाले पार्ट को देखते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये ऐसे आया ये वेव, तो ये तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल के ऊपर जो है ये वेव जो है हमें यहाँ पे सीधी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हमने बीच में न्यूट्रल लिया है और ये वाली चीज को पॉजिटिव लिया है, तो ये वाली वेव हमको ऐसी दिखाई देगी यहाँ पर। और इस वाले सर्किट को ये वेव कैसी दिखाई देगी? क्योंकि हमने उल्टा लिया है,
ठीक है, क्योंकि ये n है तो हमने इसके नीचे से मेजर किया है, राइट, तो सब कुछ उल्टा होगा, यहाँ पे मिरर इमेज होगी। तो यहाँ पे ये सर्किट हमें अगर वेव को ऐसा देख रहा है तो ये सर्किट वेव को ऐसे देख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव है। क्यों ये नेगेटिव हो गई? क्योंकि बीच वाले को हमने ग्राउंड करके जबरदस्ती जीरो बना दिया। तो जीरो से नीचे वाली वोल्टेज जो है वो नेगेटिव वोल्टेज है। तो अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे प्लस है और यहाँ नेगेटिव है, और उसी तरह से ये उल्टी है तो ये माइनस है और ये प्लस है। तो अब बताइए इसमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस है और कौन सा रिवर्स बायस है? बता सकता है कोई? कौन सा फॉरवर्ड? ये डायोड 1 है D1, ये डायोड D2 है, तो कौन सा फॉरवर्ड बायस है अब, D1 या D2? सर D1। D1 फॉरवर्ड बायस है, वेरी वेरी गुड। ओके, तो अब ये D1 फॉरवर्ड बायस्ड है, तो ये करंट यहां से ऐसे आया, इसमें गया और इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, यानी कि X जो है ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा करंट, और ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये, और इसकी वजह से क्या होगा, ये रिवर्स बायस है तो ये तो कोई करंट फ्लो कराएगा ही नहीं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है वैसे, लेकिन हम ये मान के चलेंगे ये तो कोई करंट फ्लो नहीं कराएगा। ठीक है, तो इसको, ये दिस इज लाइक एन ओपन सर्किट, वी डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन ये जो है ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहा है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया X हमारा और Y नेगेटिव टर्मिनल बन गया। अब हम आते हैं इस वाले पार्ट पर। ठीक है, उसके लिए हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ये वाले पार्ट। जब हम इस पार्ट पे आए तो इसको क्या वेव फ्रंट मिला, ये, और इसको मिलेगा उल्टा क्योंकि हमने उल्टा जोड़ा हुआ है, इसको मिला ये, यानी ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ये तो नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव से, और यहाँ पे ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से। अब देखते हैं कि क्या होगा। अब क्या हुआ, ये हो गया रिवर्स बायस। ओके, दिस हैज बिकम रिवर्स एंड दिस हैज बिकम फॉरवर्ड बायस। तो ये तो कोई करंट पास ऑन नहीं होने देगा, लेकिन ये करंट पास ऑन होने देगा। तो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे गया, इस जगह से ऐसे ही जा रहा है करंट अभी भी, यानी ये ही पॉजिटिव है और यही नेगेटिव है। ठीक है ना, तो करंट चाहे इस डायोड में से जाए, कब जाएगा इसमें, जब हमें पॉजिटिव वेव फ्रंट मिलेगी इस साइड वाली। ठीक है, जो मैं मान लीजिए ब्लू से दिखा रहा हूं। ठीक है, ये जब जब ये मिलेंगी तो ये जाएगा D1 से। ठीक है, और XY पे क्या आएगा रिजल्ट, यही आएगा। ठीक है, क्योंकि एज सच पास हो गया। जब हम यहां से जा रहे हैं, यानी जब हम नेगेटिव वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट पास होगा इसमें से, लेकिन यहां पर जिस तरह से हमने सर्किट कनेक्ट किया, X ही पॉजिटिव रहता है। तो ये वाला जो है ये B पे आ रहा है तो उल्टा हो जाता है, तो ये ऐसे आया, और X पॉजिटिव ही रहता है, इसका मतलब ये हमारा आउटपुट ऐसा आया। ठीक है, इस वाले। ओके, तो ये जो नेगेटिव वाले हैं ये सेकंड सर्किट में से जाते हैं और आउटपुट जो है पॉजिटिव ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ये हमें बनाना भी आना चाहिए, इसकी हमें प्रैक्टिस फुल होनी चाहिए। ठीक है, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर आफ्टर 1 hour. ओके, सो डोंट